Short title, extent and commencement asla. Short title it is called Indian Evidence Act. Commencement hela 1st September 1872. Correct me if I am wrong. तापर next asla ଆପଣଙ୍କର extent application କଥା କହିଲା. First asla all over India including the state of Jammu and Kashmir पूरा को apply करे. All judicial proceedings. Judicial proceeding define color 2 clause I of Criminal Procedure Code. Judicial proceedings are the proceedings where evidence is or may be legally taken on oath. तो जोठी जुडिशियल प्रोसीडिंग थाए सेठी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करे ट्राइब्यूनल्स गुडा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भितरे जीवो किछिटा ट्राइब्यूनल जीवनी जेमति कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल सम एक्सटेंट पर्यंत जीवो बट इनक्वारी जो गुडा थाए कमिश्नर ऑफ इनक्वारी डिपार्टमेंटल इनक्वारी एगुडा सब जीवनी जुडिशियल प्रोसीडिंग रे एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जीवनी देन administrative tribunal रे natural justice follow हो administrative tribunal रे भी Indian Evidence Act apply हबनी affidavit को apply करिबनी all court martial को apply करिबो except Army Navy and Air Force Act. So these are all about application of Indian Evidence Act. तापर असले interpretation clause interpretation रे first define कला the term court. Court कथा कहला तीनटा जिंस all judges all magistrate all persons legally authorized to take evidence except an arbitrator. So arbitrator is not a court and here court means a person and not a place. Then next asila facts. Facts is of two types. Gote asla physical fact, gote asla psychological fact. Physical fact hela anything which is capable of being perceived by the senses. Or psychological fact hela anything any mental condition of which a person is conscious. What are the differences between these two? Physical fact directly proof हे परिबो, psychological fact directly proof हे परिबनी. Physical fact perceive हे परिबो, psychological fact perceive करा जाई परिबो नाही. Physical fact as to anything got a certain jinsa arrange he ki got a color anything happening around this world. Psychological fact है any mental condition like intention motive good faith bad faith ill will. So these are all psychological facts. तापर नेक्स्ट आसला फैक्ट्स इन इश्यू कौन तो जो दुनिया रे में फैक्ट्स देखो जोटा इन इश्यू जोटा इन क्वेश्चन जोटा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट सेटा को फैक्ट्स इन इश्यू कहा जाए एनी फैक्ट व्हिच इज एन इश्यू वेदर इट मे बी अ साइकोलॉजिकल फैक्ट और अ फिजिकल फैक्ट मर्डर हेचे ना नहीं दैट्स एन इश्यू तार इंटेंशन थिला ना नहीं दैट्स एन इश्यू एक्सीडेंटली हेचे ना नहीं दैट्स एन इश्यू सो एनीथिंग व्हिच इज एन इश्यू दैट इज कॉल्ड अ फैक्ट्स इन इश्यू तार डेफिनेशन कौन डेफिनेशन हैला एनीथिंग as to any question relating to the existence non-existence nature or extent of any right liability disability asserted by one and denied by the other in any suit or proceeding. Suit माने civil case, proceeding माने criminal case. तो सेठी जो right liability disability नहीं कि झगड़ा चले जने कहे कि एटा हेची जने कहे एटा हे नाही सेडा को facts and issue कुहा जाए जोडार कौन प्रूफ करे थे existence non existence और nature और extent. So that's it एतिके हमें पढ़ले right. Ma'am, if ma'am, it is Arbitration and Conciliation Act 1960. 1996 we had written yesterday old one. हाँ एटा old one काहेंकी ना आमे बस एटारे देखोचे जेहेतु एटा 1872 रो एक्ट तो एटा कहि देले कि ए जो आर्बिट्रेशन एक्ट फर्स्ट रो स्टार्ट हेछि एटा एठु को अप्लाई करिवो नाही एटा किछि इंपोर्टेंस रखुनी खाली इफ यू राइट डाउन आर्बिट्रेशन को अप्लाई करेनी इनफ आउ किछि लिखे दरकार भी नाही. So next we are going to read relevant, right? Relevant हमें पढ़ेगा. Good evening. Relevant पढ़िया पूर्वरु मते गोटे क्वेश्चन आंसर दियंतु. क्वेश्चन हैला कि सबुठु लास्ट मेसेज करछि जागृति. मोर गोटे किछि हेइ जाइछि गूगल मीट को. वैक्सीनेटेड हेइ जाइछि गूगल मीट. समस्त गूगल मीट को वैक्सीनेशन दिया हेछि. ओके. सो वायरस अटैक करिवनि ताको. हेडी कौन कहला कि जेबे गोटे क्वेश्चन आछि एज टू रेलेवेंट फैक्ट. सो क्वेश्चन हैला जागृति घर धर चोरी हैला भगवान न करंतु हो बट जागृति घर चोरी हैला. सो बे क्वेश्चन आसले ए जागृति घरे चोरी करछि. एबे देखा गला कि सेई दिन जेबे ए जागृति घरे चोरी करिथिला हेबे ताकू ता घर पाखरे के गोटे देखथिला देन से चोर जाइकी दौड़ी किणवार घर चढ़ा किए ताको देखथिला. एबे से चोर जी अच्छी तार 2 वर्ष पूर्व जनक सहित झगड़ा होता तार जागृति सहित कौन प्रकार कनेक्शन नथिला. तो ए भितर रेलेवेंट फैक्ट को गुड़ा व्हाट आर द रेलेवेंट फैक्ट्स you don't need to give me answer बुझी गले रेलेवेंट फैक्ट्स एथुर को गुड़ा
ताको देखिबार तार दौड़ी किणिबार से रेलेवेंट फैक्ट तार 2 वर्ष पूर्व क्या सहित झगड़ा होता ताको बिरियानी भल लगे खाइबा कि ना ताको पखाड़ भल लगे खाइबा एगुड़ा रेलेवेंट नुहे सो रेलेवेंट माने सिंपली कौन जब गोटे फैक्ट्स इश्यू कोर्ट रे थाए सेही फैक्ट्स इश्यू को प्रूफ करबा पई किबा डिस्प्रूफ करबा पई कि जहां जहां हमें एविडेंस रे दो दोस फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट्स इट्स वेरी सिंपल जो फैक्ट गुड़ा कनेक्टेड विथ फैक्ट्स इश्यू जो गुड़ा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट को प्रूफ करिया पई कि डिस्प्रूफ करिया पई कि दिया जाए दोज आर ऑल कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट्स आ गोटे एविडेंस ता सब बेले रेलेवेंट फैक्ट रो दिया जाए ओके एंड झगड़ा जदि जागृति सहित हेतिबो दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट कि से मोटिव थिला तार रिवेंज नबा पई से घरु चोरी कला सो दिस मे इंडिकेट कि मोटिव चोरी पछरे मोटिव कौन कि जागृति ठू रिवेंज नब दिस कैन बी अ relevant fact so anyhow if it is related to jagriti or anything like that is a relevant fact एबे क्वेश्चन आसला आमे कोन पंडित जानिया कोटा relevant कोटा न लॉजिक अप्लाई करिक जान परिया बट सब relevant fact जानिया पई कि लॉजिक अप्लाई कले तो हबनी लीगल रेलेवेंसी बोली भी किछि जिंस अछि तो तापर गोटे सेक्शन आसला 5 रु नै कि 55 तो इंडियन एविडेंस एक्ट रो 5 टू नै कि 55 जो सेक्शन टा अछि गुट्टे मिनिट जेहेतु गूगल मीट रो किछि गोटे प्रॉब्लम हेछि मु कहा गोटे पिन कर देली शताब्दी ओके सो एबे कौन कहला कि जेहेतु गोटे क्वेश्चन आसिला 5 टू नै कि 55 भितरे जो फैक्ट्स गुडा आसुचे दोज आर ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स तो जब क्वेश्चन आसिला कि को गुडा रेलेवेंट फैक्ट हबो को गुडा रेलेवेंट फैक्ट हबो जो फैक्ट गुडा 5 टू नै कि 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भितरे आसुचे सो एबे हमें जानिबा केमती कहा को एविडेंस दिया जिवो सेटा 5 टू 55 भितरे फिट आस्थिबा निहित दरकार सो लेट मी एई एग्जांपल ही आमे नबा जेमती चोरो से दिन से घर दौड़ी के जिबार जने देखला हाउ दिस कैन बी अ रेलेवेंट फैक्ट बिकॉज दिस इज अ कंडक्ट एंड कंडक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 तो कुहा गला कि जेबे गोटे लोकर कंडक्ट प्रीवियस किंबा सब्सिक्वेंट कंडक्ट अछि जोडा रिलेटेड टू द फैक्ट्स इन इश्यू दैट्स अ रेलेवेंट फैक्ट एंड कैन बी गिवन एज एन एविडेंस तो दिस इज अ कंडक्ट सेमती जागृति सहित तार पूर्वरु झगड़ा हेतिला जोडा प्रॉक्सिमेट कनेक्शन एज टू दैट थाई पारे तो सेई जगह दैट्स motive which is again relevant under section 8 सेमती जन जन को मर्डर कर देला एबे मर्डर करिया परे से जाय कि आउ जन को कहिला कि मते से बहुत हैरान करथला मु ताको मारिया को इच्छा थला ओ मार देली दिस इज कन्फेशन which is again relevant under which section 17 because confession doesn't have any section it comes under the heading of admission so it admission head under a can be given as an evidence सेमती गोटे क्वेश्चन आसला जहा को मरा जाइथिला एबे से डिक्लेरेशन देला मरिया पूर्वरु कि ए लोकटा मते मारी एंड से मरी गला दिस विल बी अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 तो ए सब जिंस गुडा जो रहिला 5 टू नै कि 55 डिफरेंट फैक्ट्स कथा कहला जेमती ओकेजन हे गला मोटिव हे गला कंडक्ट हे गला कन्फेशन हे गला एडमिशन हे गला ट्रांजैक्शन हे गला रेस्ट जस्टे हे गला सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फैक्ट्स जो फैक्ट्स गुडा को रेलेवेंट फैक्ट रे कुहा जाए तो जेबे भी गोटे फैक्ट्स इन इश्यू कोर्ट को जाए एंड कोर्ट को गला परे ता सहित रिलेटेड फैक्ट्स गुडा हमको मिले देन से जो रिलेटेड फैक्ट्स गुडा अछि जदि सेटा 5 टू नै कि 55 रो हेडिंग भितरे आसिला देन आमे से फैक्ट को कोर्ट रे एविडेंस रे देई पारिबा सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन जने जो दिन मर्डर करिला से दिन मर्डर से छुरी भुसी ताको स्टैबिंग करके कला एबे मर्डर करिबा पूर्व दिन से डॉक्टर पाखु को ता देह देखिया पई जाइतला किछि गोटे तार देह प्रॉब्लम थिला खराब थिला whether this can be a relevant fact because this is nowhere connected with the facts and issue को भी सेक्शन रे आछि कि एमती हेतिला बोली बट एबे क्वेश्चन आसिला से डॉक्टर ही मर्डर हे जाय छी आ से डॉक्टर से तो तार क्लिनिक रे झगड़ा हेतला नाउ दिस इज अ relevant fact or not yes this is a relevant fact because it shows the motive of that person and motive is a relevant fact under section 8 of Indian Evidence Act okay what if that was regarding to a mental issue like Sarthak जेमती की ये गूगल मीट खतरनाक अपडेट हेचे आपनकर सब मेसेज गुडा चाली आछी खाली लाइन ऊपर सो सार्थक व्हाट इज योर क्वेश्चन माने ही इज मेंटली इल और से टाइम रे से मार देला देन आमे बहुत सारा जिंस एथर आसीबो
गोटे तो आसला कि सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड रे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस इफ द पर्सन डजंट नो कि कौन करूची एंड से जानू माने कौन करूची से जानिनी दैट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ से जानूनी देन से जगह ताको बिल्कुल मिलिबो ही नहीं इंसैनिटी विल बी अ डिफेंस बट इंसैनिटी रॉ और मर्डर रॉ कनेक्शन थिबा निहाती दरकार बुझिले सेटा हमें पढ़िया 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड रे तो जणे जदी पागल अछि से मार देला देन दिस विल बी एन एक्सेप्शन एटा एक्सेप्शन अंडर रे आसी जीवो बुझिला this will be a relevant fact जदि से पागल अछि this will be a relevant fact to disprove कि से मर्डर करी नाही ओके मर्डर करिनी डायरेक्टली प्रूफ हबो कि से मर्डर करिनी दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट कि से मर्डर करिनी काहे ना से इनसेन अछि ओके एंड दिस इज रिलेटिंग डायरेक्टली रिलेटिंग टू द फैक्ट्स इन इशू तो ये सब जिनस गोटे रेलेवेंट फैक्ट कहला एज टू प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट अनुसार सो राइट डाउन रेलेवेंट रे राइट डाउन फर्स्ट लिखंतु वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट एंड आ गोटे जिनस इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ला बेले हम कहि दोची बिल्कुल भी बेसी भाबिबे नाही once you are thinking so much पूरा कंफ्यूज हेकी रहि जेबे दिस इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप थिंग जेबे आपण गोटे फर्स्ट मु कहितली जेबे आपण फर्स्ट गोटे जगह को जानते सेबे आपण से जगह विषय किसी जानि नथाले एंड डे बाय डे यू डिस्कवर अबाउट दैट प्लेस तो एविडेंस एक्ट की को भी एक्टर फर्स्ट एग्जैक्टली से डोंट ट्राई टू ग्रैप्स एवरीथिंग गोटे दिन रे धीरे 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 कांसेप्ट वाइज क्लियर हे जिबे ओके सो फर्स्ट रेलेवेंट रे राइट डाउन one fact is said to be relevant one fact हाँ एटा first one fact is said to be relevant to another one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other is connected with the other in any of the ways in any of the ways referred to the provisions of this act referred to the provisions of this act relating to the relevancy of facts relating to the relevancy of facts so आउ गोटे प्रो टिप फॉर ऑल जो मैंने गूगल मीट बहुत दिन हेलानी यूज करछंती जेतु गूगल मीट अपडेटेड ही जाइछि एंड पूरा स्क्रीन रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाइछि अपन डाइवर्ट हेबे आज किछि जिंस मुंडे रे रजिस्टर हबनी बिकॉज़ मुंडो ऑलरेडी नुवा जिंस रजिस्टर करिया पई कि चाहूछि अपन को दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट सो स्क्रीन को बेसी टाइम अनंतु नाही या फिर मिनिमाइज कर दे कि बस कथा सुनंतु बुझिला व्हाट आई एम सेइंग सो राइट डाउन वन फैक्ट इज सेड to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of facts एथरे अंडरलाइन करंतु relevant रे connected रे any of the ways रे relevancy of facts रे गोटे फैक्ट आउ गोटे फैक्ट सहित रेलेवेंट केतेबेले हबो जेबे से गोटे फैक्ट ए जो प्रोविजन ऑफ रेलेवेंसी अछि जदी से फैक्ट रे गोटे रिलेटिंग फैक्ट आसुची जोडे कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट भितर रेलेवेंट बोली कहिची देन दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट फॉर द अदर फैक्ट सो इट दीटा फैक्ट गोटे फैक्ट जोटा इश्यू रे अछि आउ गोटे फैक्ट जोटा एविडेंस रे दिया हबो कि नाही बोली क्वेश्चन आसिला देन सेही जगह रे जदी क्वेश्चन हैला कि गोटे फैक्ट आउ गोटे फैक्ट पई रेलेवेंट ना नाही यस इट इज रेलेवेंट जदी गोटे फैक्ट आउ गोटे फैक्ट सहित कनेक्टेड इन एनी ऑफ द वेज रिलेटिंग टू दिस chapter जोटा कि और provisions as to relevancy of facts so you can do a diagram अपन को खाता रे do that diagram रे कौन करिवे first लिखंतु गोटे fact तापरे लिखंतु ता साइड रे लिखंतु आउ गोटे fact
सेकेंड फैक्ट फर्स्ट गोटे फैक्ट लिखंतु तापरे आउ गोटे फैक्ट लिखंतु सेकेंड फैक्ट फर्स्ट फैक्ट जोड़ा अच्छी सेठी लिखंतु क्वेश्चन क्वेश्चन एटा हला क्वेश्चन रे थिबा फैक्ट देन फर्स्ट सेकेंड फैक्ट जोड़ा अच्छी सेही फैक्ट लिखंतु relevant for that first fact relevant for that first fact relevant for that first fact then ता तळे लिखंतु if connected with the first fact if connected with the first fact bracket रे लिखंतु 5 to 55 5 section 5 to 55 section 5 to 55 then लिखंतु क्वेश्चन जो फैक्ट रे लिखचंती सेडी एग्जांपल देके लिखंतु मर्डर क्वेश्चन जो फैक्ट रे लिखचंती सेडी एग्जांपल देके लिखंतु मर्डर फर्स्ट फैक्ट रे लिखंतु मर्डर फर्स्ट फैक्ट इज इन क्वेश्चन सो फर्स्ट फैक्ट रे लिखंतु मर्डर सेकंड फैक्ट रे लिखंतु कंडक्ट हाइपेन सेक्शन 8 conduct hyphen section 8 dying declaration hyphen 32 clause 1 dying declaration hyphen 32 clause 1 बस तेबे कौन कहिला कि गोटे फैक्ट अछि जो फैक्ट क्वेश्चन रे अछि आउ गोटे फैक्ट्स अछि आउ किछि गुडा फैक्ट्स अछि जो गुडा ता सहित रेलेवेंट ना नहीं कुहा गला तो जो सेकंड फैक्ट अछि सेडा फर्स्ट फैक्ट सहित केते बेले रेलेवेंट हबो जेबे सेडा 5 to 55 भितरे थिबा कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स भितरे आसीबो नेक्स्ट राइट डाउन आउ लेखंतु बुझिछि पूरा लास्ट पर्यंत लेखला परे देन नेक्स्ट राइट डाउन relevancy means connection between one fact and another relevancy means connection between one fact and another connection between one fact and another next one fact is said to be relevant to another one fact is said to be relevant to another when it is connected with another when it is connected with another in any of the ways referred to in any of the ways referred to in the provisions relating to relevancy of facts bracket re section 5 to 55 section 5 to 55 next heading re diyantu there are two kinds of relevancy there are two kinds of relevancy number 1 logical relevancy number 1 logical relevancy number 2 legal relevancy heading hela there are two kinds of relevancy dita type ro relevancy jo relevant fact seta dita type ro गोटे hela logical relevancy आउडे asle legal relevancy
लॉजिकल रेलेवेंसी आउ लीगल रेलेवेंसी। ओके सो लेट मी टेल यू वन थिंग जेबे क्वेश्चन आछि रेलेवेंट कोन रेलेवेंट रे इंटरप्रिटेशन कोन रेलेवेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड रेलेवेंसी रेलेवेंसी रो माने हैला कनेक्शन बिटवीन टू फैक्ट्स गोटे फैक्ट सहित आउ गोटे फैक्ट केते बेले कनेक्टेड कहले इंडियन एविडेंस एक्ट रे जो जो फैक्ट्स गुडा को हमें रेलेवेंट फैक्ट कहूचे से फैक्ट गुडा को हमें एविडेंस रे दे परिबा तो एविडेंस रे दबा पाई कि सेई फैक्टटा मेन फैक्ट सहित कनेक्टेड थिबा निहाती दरकार आ जो कनेक्शन टा थाए सेई कनेक्शन टा सेक्शन 5 रो नेकी 55 डिफाइन करे कि जदि गोटे फैक्ट एई कैटेगरी अंडर रे आसुची डाइंग डिक्लेरेशन होची एडमिशन होची कन्फेशन होची ट्रांजैक्शन विषय शो करुची इंटेंशन विषय शो करुची मोटिव विषय शो करुची ऑकेजन विषय कहूची रेजिस्टे होची सो एनी फैक्ट जोड़ा 5 टू नेकी 55 रो कैटेगरी भितर फिट आसुची टू बी एन एविडेंस सेही फैक्ट को फैक्ट्स एंड इश्यू रे थिबा फैक्ट पई कि रेलेवेंट फैक्ट बोली कुहा जाय एंड सेही फैक्ट को ही इंडियन एविडेंस एक्ट अनुसार एविडेंस बोली कुहा जाय एंड एविडेंस रे दिया जाई पारे सो जदि क्वेश्चन आसुची रेलेवेंट फैक्ट रो मूल्य कोन माने आमे रेलेवेंट फैक्ट पढुजे कोन पई टोटली इंडियन एविडेंस एक्ट ही रेलेवेंट फैक्ट ऊपर डिपेंड करछ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहूची को फैक्ट गुडा को तुमे एविडेंस रे देई परिबो को फैक्ट गुडा देई परिबो जो गुडा रेलेवेंट फैक्ट हबो को गुडा रेलेवेंट फैक्ट हबो जो गुडा 5 टू नेकी 55 भितर आसीबो एति की बुझियला ना बुझियलानी माने जदि क्वेश्चन आसला मर्डर हेची चोरी हेची प्रॉपर्टी मिलिबो ना नाही कि जहां भी हबो ता पई कि रेलेवेंट फैक्ट को गुडा ता पई कि रेलेवेंट फैक्ट हैला जो गुडा 5 टू नेकी 55 रे थिबा कैटेगरी भितरे आसुची बुझियला सो जागृति गोटे मर्डर हैला ए बी को मर्डर कला सो ए बी को मर्डर करियर आपण जाएंगे कोर्ट रे कोन कहबे कि ए को पनीर खाए को भल लागे ए को बिरयानी खाए को भल लागे ए को गाड़ी ड्राइव करी आसेनी ए बहुत बदमाश तो आपण कोन कहबे ए रो मोटिव विषय कहबे तार कंडक्ट विषय कहबे तार रिवेंज नबार थिला बोली कहबे से ता सहित गोटे पुराना दुश्मन रे थिला कहबे से जाएंगे काहाको कन्फेस करके कहिचे ए विषय कहबे एडमिशन विषय कहबे तो ए जो जिंस गुडा आपण कोर्ट रे कहउजंती एविडेंस रेटा कोठी लिखा हिचे कि फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट बोली गोटे मोटिव टा गोटे रेलेवेंट फैक्ट गोटे ऑकेजन टा गोटे रेलेवेंट फैक्ट गोटे कन्फेशन टा गोटे रेलेवेंट फैक्ट एटा कोठी लिखा हला एक्जेक्टली दैट्स द थिंग कि 5 टू नेकी 55 कहला कि जदि गोटे कनेक्टेड फैक्ट अछि जेटा 5 टू 55 भितरे कहउची दैट्स अ रेलेवेंट फैक्ट एंड दैट कैन बी गिवन एज एन एविडेंस एबे क्वेश्चन आसला गॉट इट जागृति एबे क्वेश्चन आसला लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी एबे लॉजिक और लीगल दीडा भितरे डिफरेंस कोन लॉजिक माने हैला आमे मुंडो लगे कि जोडा जानिया पाए कि पाउचे माने आमे जेतेबेले भाबुचे से विषय रे आमे बुझी परचे कि सेया हेची बोली लीगल माने कोन आमे भाबिया दरकार नै हमको लॉ कहि दूची कि ए जिंसडा हेची बोली लॉ कहिला कन्फेशन रेलेवेंट हबो लॉ कहिला एडमिशन रेलेवेंट हबो लॉ कहिला डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट हबो सेटा लॉजिकली रेलेवेंट थाओ कि जहां भी थाओ वी डोंट केयर बिकॉज़ सेटा लीगली रेलेवेंट हे गेला एबे क्वेश्चन आसला लीगल रेलेवेंसी तो हमें बुझी गले 5 टू नेकी 55 हैला लीगल रेलेवेंसी केना लॉ कहिची ए फैक्ट गुडा रेलेवेंट हबो तो 5 टू नेकी 55 रे जो फैक्ट्स अछि आखि बंद करके सेडा लीगल रेलेवेंसी हे गला एबे क्वेश्चन आसला बियॉन्ड दैट इफ एनीथिंग इज देयर जेमति कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो माने एविडेंस एक्ट आगुरु पढिथिबे ए विषय कहि परबे जो माने पढि नाहंती नुआ पूरा भलसे सुनंतु गोटे हस्बैंड और वाइफ कथा हेले वाइफ से दिन मर्डर करके आसला और ता हस्बैंड को कहला कि बहुत दिन हेलाणी मु तुमको कहूची ताको मारिया पई तुमे तो सुनु नथिलो मु ताको मार देली सरला सेतिकी रो कथा सरला एबे ये जो कन्फेशन टा से तार हस्बैंड को देला whether that is relevant or not generally relevant हबा कथा काहे कि काहे ना लॉजिक तो या कि जदी से मानुची ता हस्बैंड आगे रे कि मु मर्डर करिची सो दिस इज लॉजिकली रेलेवेंट और नॉट मते गुड कथा कहले whether this is logically relevant or not लीगल कथा भूली जात it's logically relevant or not logically relevant but whether it is legally relevant no because law मना कर देला कि husband and wife भितरे जो communication टा हुए that is highly privileged and that cannot be given as an evidence so this is a fact which is logically relevant but this is not legally relevant so this will not be relevant तो एबे my question to you is गोटे फैक्ट को रेलेवेंट हबा पाई कि वेदर लॉजिकल रेलेवेंट हबा दरकार लीगल रेलेवेंट हबा दरकार ना बोथ हबा दरकार
Okay, so this is a question of your prelims. कि every relevant fact is legally relevant and it must be legally relevant. Logical थाउ न थाउ doesn't matter. तो जदि गोटे fact legally relevant अच्छी धरा है जीवो कि से logically relevant अच्छी, so both दरकार नहीं. Only legal relevancy चले और legal relevancy है 5 to 55. So तीनटा जिनसो जदि गोटे fact है logically relevant, logical relevant but not legally relevant, not admissible as evidence. बुझिएला, logically relevant, not legally relevant, not admissible as an evidence. खाली logical relevancy court accept करे नहीं. So गोटिए fact जोटा legally relevant ताको accept करिबे ना नहीं, maybe logically relevant नुहे but legally relevant, whether court सेटा accept करिबे ना नहीं, answer will be yes because law कहूची याको accept करो. तो एबे question हला कि question हुए answer हला every legal relevancy is logically relevant but every logical relevancy may not be legally relevant. Logical relevancy को legally relevant होबा पाई कि 5 to 55 भितरे आसुथिबा निहाती दरकार. So every legal relevancy is logically relevant because law कहूची relevant माने logically ही कहूथिबा relevant बोले, but every logical relevancy may not be legally relevant. But जो logical relevancy legally relevant सेटा 5 to 55 भितर आसीजिवो एंड सेटा एविडेंस रे दिया जाय परिबो. सो इंपोर्टेंट जिंसो कोन कि रेलेवेंसी लॉजिकल ना लीगल, इट शुड ऑलवेज बी लीगल. कहीं लॉजिकल रेलेवेंसी जदि लीगल रेलेवेंसी न होची देन सेटा को एविडेंस रे दिया जाय परिबो नाही. जेमति कि 122 रो फैक्ट इज लॉजिकली रेलेवेंट बट दिस इज नॉट लीगली रेलेवेंट, दिस इज नॉट कमिंग अंडर 5 to 55 भितरे, देन से जाय दिस कैन नॉट बी गिवन एज एन एविडेंस. क्लियर? So जदि क्वेश्चन आसीबो रेलेवेंसी लीगल ना लॉजिकल, आंसर कोन होबो? It is always legal. Okay, it is always legal. Logical, legal means it's of course logical, but every logical may not be legal. Okay, bus, that's the answer. Next, write down. There are two kinds of relevancy: logical relevancy and legal relevancy. Then next, likh on to a fact is said to be logically relevant. A fact is said to be logically relevant a fact is said to be na mu kichi kohuni. A fact is said to be logically relevant when when by virtue when by virtue of the application of our logic. Actually केत जनकर admit हेनी आज request तो मते message करछन्ते आज 100 हे गले हमारे जे century ही जेबा. So write down a fact said to be logically relevant when by virtue of the application of our logic, when by virtue of the application of our logic it appears to us that one fact has a connection to another fact. One fact has a connection to another fact. Next, write down. But facts which are logically relevant, but facts which are logically relevant, but facts which are logically relevant are not provable. But facts which are logically relevant are not provable. Example, Section 122 of Indian Evidence Act. Example,
Section 122 of Indian Evidence Act bracket रे privileged communication between husband and wife. Privileged communication between husband and wife. Section 122. Privileged communication between husband and wife. Next heading दियंतु legal relevancy. लॉजिकल रेलेवेंस रे कौन कहला जोठी लॉजिक अप्लाई करिकी गोटे फैक्ट आ गोटे फैक्ट सहित कनेक्टेड बोली जना पड़ुची दैट्स लॉजिकल रेलेवेंसी बट लॉजिकल रेलेवेंसी रे गोटे लॉजिकल रेलेवेंसी गोटे एविडेंस हबो नाही जदि सेटा लीगली रेलेवेंट नुहे जेमति कि 122 privileged communication between husband and wife during marriage is highly privileged and cannot be given in evidence though this is logically relevant but you cannot give this as an evidence. Next write down legal relevancy. Legal relevancy रे लिखंतु a fact is said to be logically relevant. A fact is said to be legally relevant. A fact is said to be legally relevant when it is expressly declared as relevant under any of the provisions of the relevancy chapter that is section 5 to 55. That is section 5 to 55. So relevancy to be a fact should be legally relevant. A fact should be legally relevant to be an evidence. So गोटे fact legally relevant हबा निहाती दरकार जदि याकू evidence हबार अछि. Okay, so this is all about relevancy. तो relevancy रे कौन आसले दीटा जिनस आसला logical relevancy, legal relevancy. आरो question भी आसे difference between logical relevancy and legal relevancy. तो first आसला question. First question is about question हला कि जेबे गोटे question आसला कि relevant fact कौन relevant fact माने हला anything which is connected with the other fact. So गोटे fact सहित आउ गोटे fact जदि connected that is a relevant fact for the other. Then question आसला कि relevant टा कौन 5 to 55 भितरे जो जिनस गुडा आसला ताकू ही relevant बोली कुहा जाए. So तुमरे जेबे गोटे कोर्ट रे question case चलची एबे से case टा चलेला बेले तुमे कौन evidence रे दबो जो facts गुडा तुम हाथ रे अछि जदि से गुडा 5 to नहीं कि 55 भितरे गोटे match fact अछि then तुमे सेडा को evidence रे देई पारिबो. एबे क्वेश्चन आसला रेलेवेंट को लीगली हबा दरकार रेलेवेंट ना लॉजिकली रेलेवेंट हबा दरकार. दिस इज ऑब्वियसली कि जेबे गोटे लीगली रेलेवेंट फैक्ट अछि सेडा सब बेले लॉजिकली रेलेवेंट हबो बट सब लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट मे नॉट बी लीगली रेलेवेंट जेमति के सेक्शन 122 लॉजिकली रेलेवेंट बट लीगली रेलेवेंट हबो नाही. सो गोटे फैक्ट को रेलेवेंट हबा पई कि लीगली रेलेवेंट हबा निहाती दरकार और लीगली रेलेवेंट हबा पई कि 5 to नहीं कि 55 भितरे सेडा आसुथिबा निहाती दरकार जेमति कि मोटिव कंडक्ट डाइंग डिक्लेरेशन कन्फेशन एडमिशन ओकेजन अपॉर्चुनिटी रेस्ट जेस्टे बहुत सारा जिनस आसला टाइम प्लेस प्ली ऑफ एलिबी आइडेंटिफिकेशन कॉन्स्पिरेसी तो बहुत सारा जिनस एथरे आसला. बुझेला एते कि ना बुझेला got it. So Sasmita मते गोटे क्वेश्चन आंसर दियंतु जेबे गोटे क्वेश्चन कोर्ट रे आसे क्वेश्चन टा एज टू व्हाट थाए कोर्ट रे को टाइप रो क्वेश्चन आसे सब्जेक्ट मैटर कोन थाए it's about right liability disability of someone
किछि गोटे राइट ऊपर कंट्रोवर्सी अछि, लायबिलिटी ऊपर क्वेश्चन अछि, कंट्रोवर्सी हां राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी एबे एटा केमिति प्रूफ हबो, प्रूफ केमिति हबो, आपण प्रूफ केमिति करिवे, किछि फैक्ट तो देबे ना, मर्डर हेछि तो आपण प्रूफ केमिति करिवे, मोटिव थिला, कंडक्ट थिला, मु ताको देखिथिली से मर्डर करिया बेले दौड़ी की पळेला, तो एई जो फैक्ट गुडा अछि ताकू ही रेलेवेंट फैक्ट बोली कुहा जे, काहे ना एटा 5 टू 55 भितरे आछे, तो को गुडा रेलेवेंट फैक्ट सेटा 5 टू 55 भितरे कहला, जो गुडा 5 टू 55 भितरे आसुनी से गुडा को एविडेंस रे दिया जाई परिबो नाही, ओके। तो से कहला 5 टू 50 माने लॉ ही कहला सेक्शन एटा 5 टू 55 कौन सेक्शन, सेक्शन की लिखिछि, एनैक्टमेंट की करंती सेक्शन, लेजिस्लेचर करंती, तो एटा लीगल रिलेवेंसी ना लॉजिकल रिलेवेंसी, लीगली रिलेवेंट बिकॉज़ लॉ कहूछि एटा लीगली रिलेवेंट हबो, बुझियला। एबे क्वेश्चन आसला लॉजिकल रिलेवेंसी कोन, जोडा लॉजिक अप्लाई करी हबो, जेमति कि 122 रे गोटे सेक्शन अछि जोठी कहिला कि हस्बैंड एंड वाइफ जहा कथा हुअंती ताकू एविडेंस रे दिया जाई पारे नाही, एबे हस्बैंड वाइफ को कहूछि मु चोरी करछि, whether this is logically relevant or not, जदि से मानुछि चोरी करछि, whether this can be given as an evidence or not logically, yes, but why it cannot be given, because this is not legally relevant, so a fact need to be legally relevant to be an evidence, okay, खाली logical relevant हेले हबो नाही, आंसर कौन पे दिया हबो, टू प्रूफ द फैक्ट, एग्जैक्टली जो फैक्ट्स ने इशू अछि ताको प्रूफ किंबा डिसप्रूफ करिया पय कि दिया जीवो, तो फैक्ट प्लस सेक्शन 5 to 55 is equal to relevant fact is equal to proving or disproving facts in issue. Thank you so much, Kiran. Next, write down husband wife को conversation valueless, कहीं valueless, थर्ड पार्टी सुनी देले valuable ही जीवो, with permission valuable ही जीवो, against to each other valuable ही जीवो, जेमती कि husband और वाइफ रे डिवोर्स केस चलला, हस्बैंड मानिला तो वाइफ आगे रे कि मु एडल्टरी करिछि, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, बट केस किए करछि वाइफ करछि, तो वाइफ कैन गिव दिस एज एन एविडेंस, जेबे दु जण एका सहित रहबे प्रिविलेज कम्युनिकेशन वैल्यूलेस, अलगा हे गले प्रिविलेज कम्युनिकेशन एविडेंस हे जिवो, सो नेक्स्ट राइट डाउन, सो जो पर्यंत एकाठी रहउथिबो से पर्यंत तुमे प्रिविलेज एन्जॉय कर परिबो, सो नेक्स्ट राइट डाउन, अच्छा रेलेवेंस वाला, नेक्स्ट कम टू डॉक्यूमेंट, against each other हेले मन धर they are the parties, then more privilege communication मा जनकर evidence रे दे परिबे, बुझिया माने इट्स लाइक कि मो हस्बैंड मोर अपोजिट पार्टी से जहा कम्युनिकेट मते करथले जोडा गोइंग अगेंस्ट हिम, आई कैन गिव दैट एज एन एविडेंस, ओके। सो नेक्स्ट कम टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रे एज ऑलवेज मु 10 वर्ष लेनी गोटे ही क्वेश्चन पचरी आछे समस्त को मते आंसर दियो, डॉक्यूमेंट कहले फर्स्ट आपन को मुंड को कोन आसे, bus, exactly that I was expecting, papers document and all, but mu कहबी गछ गोटे document हे परिबो, whether a tree can be a document, papers बुझिली पेपर, whether a tree can be a document, of course हे परिबो, सृजन कहले कहले सागरो पड़ी छी गोटे document tree हे परिबो, गोटे टॉमस्टन document हे परिबो, माने लिखा है जन्म ए तारीख रे हेचंती आ मरण ए तारीख रे हेचे, हे परिबो, whether that can be a document, of course हे परिबो, tree can be a document tree paper convert हेगी हबो, हां सेंति भी हे परिबो, tree भी हे परिबो, see document माने सबडू भले जिंस मन रखंतु, गोटे सब्सटेंस थाए, सब्सटेंस माने जहा ऊपर तुमे किछि खुदाई कर परिबो, लिखि परिबो, पेंट कर परिबो, सो एनी सब्सटेंस एक्चुअली जो गूगल मीट टा चेंज हेचे, आपन को मेसेज गुडा सब इंडिविजुअल बॉक्स रे गोटे 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 आछे, इट्स वेरी इरिटेटिंग, सो चालू छी कंटीन्यूअस हे चालू छी, एनीवेज तो ये कौन कहला कि जेबे गोटे क्वेश्चन आस टू डॉक्यूमेंट आसिला, एबे डॉक्यूमेंट हैला गोटे सब्सटेंस, आउ से सब्सटेंस ऊपर जहा भी लिखा जाइची को भी फॉर्मेट रे, okay, that may be a mark, that may be anything which is written, gote printing, gote letters, figures, anything जोटा recorded purpose ପାଇଁ कि अच्छे, that can be a document, so document ର definition लिखंतु, तापरे आमे जिबे ट्री केमती document हबो, टॉमस्टन केमती document हबो,
कौन केमिति डॉक्यूमेंट हम एटा आमे परे पढ़िया फर्स्ट राइट डाउन डॉक्यूमेंट ट्री भी हम टॉमस्टोन भी हम पत्थर भी हम मार्बल पत्थर जोड़ा मंदिर रे फिटिंग हुए सेटा भी हम फोटोग्राफ भी हम एवरीथिंग कैन बी ए डॉक्यूमेंट आमे पढ़िया परे केमिति फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन हेलो हाँ सर ओहो एबे बोधे तारो माने चेंज हो जाइए कि अरे रे रे 99 तो एबे अच्छी कौन एबे 100 लिमिटेड कर देला कि मु तो सब्सक्राइब भी करथिली ओहो तो एबे 100 ही ओके 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 फाइन फाइन मु तो आपन को कौन करबी आ आपन बसंत करे मु तो सब्सक्राइब कर देबी जोतरे 100 रु अबव हे परिबो फाइन फाइन अपन ट्राई करंतु 98 अच्छी एबे हाँ सांग सांग कर दियंतु एबे गूगल मीट रे फिर आ गोटे हे गला कि एबे 100 रु बेसी पिला हेबे नाही स्वयं कॉल करी कांदुथिला सो राइट डाउन माने कालिठु ए अछि कंपटीशन हबो को माने जॉइन करिवे कालिठु सब्सक्राइब कर दो मोर गोटे अछि नहीं 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 आई हैव मु नेटली गोटे डोमेन किनिथिली मु सो सेटा को आउथर एक्टिवेट कर दिले 100 ऊपर हे जिवो डोंट वरी सो राइट डाउन हे गेला ना स्वयं कि गोटे कटिथिला आपण आसीले ओके सो राइट डाउन डॉक्यूमेंट रे डॉक्यूमेंट मीन्स अरे एटा मो पई गोटे टेंशन रे जिंस डॉक्यूमेंट मीन्स ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଖୁସି ହେଇଥିଲି କି ଆଜି 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ବଢୁନାହାନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏନି ମ୍ୟାଟର ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ document means any matter document means any matter next line re expressed or described expressed or described first लिख ले document means any matter second line रे लिखंतु expressed or described expressed or described third line रे लिखंतु upon any substance upon any substance next line रे लिखंतु by means of letters figures or marks by means of letters figures or marks or by more than one of those means or by more than one of those means next line रे लिखंतु intending to be used or which may be used intending to be used or which may be used next line रे लिखंतु for the purpose of recording that matter for the purpose of recording that matter orthodoxy document means any matter next line re expressed or described upon any next line re substance मिसिकी भी लिख देवे expressed or described next upon any substance next by means of letters figures or marks or more than one of those means intending to be used or which may be used for the purpose of recording that matter so underline karantu matter re underline the matter अंडरलाइन करंतु described रे अंडरलाइन करंतु substance रे अंडरलाइन करंतु letter figure marks अंडरलाइन करंतु intending अंडरलाइन करंतु purpose अंडरलाइन करंतु recording
अंडरलाइन करंतु recording purpose of recording that matter purpose of recording that matter so बुझियाला कौन कौन अंडरलाइन करेर अछि डॉक्यूमेंट मैटर डिस्क्राइब्ड substance letter figure mark intended purpose recording that matter so एबे डॉक्यूमेंट रो माने कोन कहल फर्स्ट असले एटा गोटे मैटर किछि भी गोटे मैटर कोन होची एक्सप्रेस होची या फिर डिस्क्राइब होची कहा ऊपरे गोटे सब्सटेंस ऊपरे को मीन्स रे बाय लेटर्स फिगर्स मार्क्स और मोर ऑफ दोज मीन्स इंटेंशन कोन आकु रिकॉर्ड करिकी रखिबा नाउ टेल मी सब्सटेंस रे खाली कोन पेपर आसीबो substance can be anything it can be pathar it can be paper it can be anything photograph ro papers he gala tree he gala map he gala navigation ପାଇଁ ହେଇଗଲା wall ହେଇଗଲା କିଛି ବି ଜିନିଷ substance ହେଇଗଲା ଏବେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗଲା by means ରେ କଣ ଖାଲି letters ଆସିଲା ଏଠି ତ letters ଆସିଲା figures ଆସିଲା marks ଆସିଲା ତାନେ ତୁମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦଉଛ arrow ଚିହ୍ନ ଦଉଛ ଗୋଟେ substance ଉପରେ then ସେଟା document ହେଇଗଲା ନା ହେଇଗଲାନି of course fulfill तो कर देला क्राइटेरिया सब्सटेंस ହେଇଛି arrow mark ହେଇଛି recording रे रीजन हैला कि एई जो एड्रेस टा अछि आरो दिगटा एई पटे सो एबे क्वेश्चन आसला डॉक्यूमेंट रो ऑथेंटिक माने कोन डॉक्यूमेंट माने किछि जिंस तुमे एक्सप्रेस करूचो को भी सब्सटेंस ऊपर करूचो आ को भी वे रे करूचो बट पर्पस हैला फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर एबे ए जो चिंकी प्लस मिंकी destroyed छुआ सब उत्पत्तिया छुआ कांथरे लिखले चिंकी प्लस मिंकी की जहां भी whether this will be a document letters द्वारा तो लिखा है substance ऊपर भी लिखा है describe भी करा है whether this can be a document why because purpose कौन purpose किछि नहीं यार purpose हैला ध्वंस करिवा सब कांथ बाड़ जहां भी अछि and निज फ्यूचर को भी ध्वंस करिया so these are all nothing आर किछि माने बनू नाही बट जदि गोटे कांथरे लिखा गला कि ये हेले ए लोक ये मंदिर निर्माण करथिले एई डेट रे करथिले whether this can be a document or not कांथरे जदि लिखा हैछि yes because question आसला मंदिर रो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहार ए लोकर काहेना मंदिर ए लोक बनेथिला को डेट रे बनेथिला ए डेट रे बनेथिला so there is a purpose of recording that matter बुझियला so a question asla whether it should be written or not yes as Lopamudra asked whether it should be written or not एबे written हेतले तो खाली लेटर हेथांता बट हमको कोन लिखा गले लेटर हैला फिगर्स हैला मार्क्स हैला तो एबे जो आपण माने गला बेले एबे तो गच्छ भी नाही तो आपण माने गला बेले बाटरे देखिबे गच्छरे सब व्हाइट कलर रो पेंटिंग हेथाय देखछन्ती केबे एबे तो गच्छ नाही जेबे भी थिबे देखथिबे व्हाइट कलर रो पेंटिंग हेथाय रेड कलर रो पेंटिंग हेथाय काई हेथाय why reason this belongs to forest department or government तो ए जो गच्छरे व्हाइट कलर रो पेंटिंग हैला हमको इंग्रेडिएंट फुलफिल करियर अछि कोन एटा गोटे मैटर कोन एक्सप्रेस करा गला काहा ऊपरे गच्छ ऊपरे को द्वारा मार्क द्वारा कौन रिकॉर्ड करा गला दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट नाउ वेदर ट्री कैन बी ए डॉक्यूमेंट और नॉट तो से जो ट्री जोडी व्हाइट पेंटिंग अच्छी जोडा रेफर करछि दिस ट्री बिलोंग्स टू गवर्नमेंट वेदर दिस कैन बी ए डॉक्यूमेंट और नॉट यस जदि सेडा को कटा होछि एंड सेडी व्हाइट कलर मार्क अच्छी दैट कैन बी गिवन एज एन एविडेंस कि सर देखंतु आरो व्हाइट कलर मार्क थिला व्हिच मींस कि दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट देन से जगह रे एटा एविडेंस रे दिया जाय परिबो सो एबे क्वेश्चन आसला व्हाट डू यू मीन बाय अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट doesn't mean paper document can be anything tombstone हे परिबो गुडे लोकडा एतिकी डेट रे बंचिला सॉरी जन्म हला एतिकी डेट रे मरि गला in between को हला सेटा फालतू हमें एबे जो सब जिंस उडा करछ that will be going in vain so date दीटा ही important ना तो जुडिशियरी पाइरे डेट ना तो किछ इट्स ओनली जन्म हबर डेट और मरियर डेट सो एबे सेटा टॉम्बस्टोन रे लिखा हला केबे जन्म हला और केबे मरिला in between को गला के पचरछ सो से जो दीटा डेट जोटा टॉम्बस्टोन रे लिखा हला whether that's a document or not yes for the purpose of knowing कि से केबे जन्म हेतिले and for the purpose of knowing कि से केबे मरथिले so that's a document बुझियला तो एबे डॉक्यूमेंट कोन को भी सब्सटेंस ऊपर किछि भी जिंस एक्सप्रेस करा होची को भी मींस रे एक्सप्रेस करा होची रीजन हला रेकॉर्ड हे कि रहिबो रेकॉर्ड हे कि रहिबा पई कि जोडा को फ्यूचर पर्पस पई कि कंट्रोवर्सी हेले तुमे देई परबे एविडेंस रे दैट्स कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट सो राइट डाउन document tattoo in human body
substance रे तुम्हें कौन करछो by ink तुम्हें tattoo बनोछो but for the purpose of recording what? For the purpose of recording love your partner ତା ନା ଲେଖଛ ତ ଯଦି adultery କଲ ତୁମକୁ question ଆସିଲେ ତୁମେ ଦେଖେଇବା ଦେଖ ମୁଁ ଖୋଦିଛି ତା ନା 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 ଆର purpose of recording କିଛି ନାହିଁ okay so there is no purpose of recording तो जेहेतु no purpose of recording but yes this can be identification हाँ हाँ किए गोटे लिखले exactly तो एटा को टाइप रे डॉक्यूमेंट हेई परिबो for identification this can be a document कि गोटे बॉडी रे तुमर एई चिन्हटा थिला this can be a document for identification कि तांको बॉडी रे जोटा थिला एटा चिन्ह बट तुमे बॉडी को डॉक्यूमेंट हिसाब रे केमति यूज करियो हेई परिबानी माने इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट हाँ बॉडी डॉक्यूमेंट हबनी बॉडी इज नॉट अ सब्सटेंस राइट इट्स अ लिविंग थिंग केमति हबो डॉक्यूमेंट आजिकली कौन खोजिबे ताको सेट सस्मिता जार टैटू अछि ताको आनी देखेबा आइडेंटिफिकेशन रे देख रे आई डोंट नो सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी को सब्सटेंस कुहा ही पारिबनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सब्सटेंस शुड बी नॉन लिविंग लिविंग बीइंग के सब्सटेंस हो सब्सटेंस रो माने कोन लेट मी सी गूगल रे सब्सटेंस मान तो गोटे पदार्थ ना गोटे ह्यूमन बीइंग रो बॉडी कोन गोटे पदार्थ ना आई डोंट थिंक सो हबनी ह्यूमन बीइंग रो बॉडी कैन नॉट बी अ डॉक्यूमेंट it should be a thing like ଗୋଟେ substance ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବେ ହାତ ଗୋଡରେ ଲେଖିକି that will be your dying declaration 32 ଯାହା ନାଁରେ ଲେଖିଥିବେ ସେ ଜେଲ ଯିବ abatement of suicide ରେ ଖାଲି ଲେଖିକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବେ next write down अच्छा so बुझिला डॉक्यूमेंट रो फर्स्ट लेखन डॉक्यूमेंट is defined in section 3 documents are defined in section 3 of the evidence act of the evidence act in a very wide sense in a very wide sense document generally means written paper document generally means written paper but according to this provision document means and includes documents means and includes but according to this provision document means and includes matters expressed on all material substances by any means for the purpose of recording that matter for the purpose of recording that matter for the purpose of recording that matter example inscription on a metal plate inscription on a metal plate a writing on a wall a writing on a wall white marks trees white marked trees etc okay so these are the things कि document can be anything जहाँ ऊपर किसी describe करा जायछि it can be a then our example रे लिखंतु photograph a map a plan anything okay so ये सब जिनस document हो so document what you need to remember गोटे matter अच्छी जोड़ा को describe करा होची या फिर express करा होची
कहा उपरे गोटे सब्सटेंस उपरे एंड से जो यस मैप गोटे सब्सटेंस उपरे एक्सप्रेस करा जाउची एंड जो सब्सटेंस उपरे एक्सप्रेस करा जाउची को वे रे एक्सप्रेस करा जाउची लेटर फिगर मार्क्स और मोर ऑफ दोस मीन्स एंड कंटेंट की एक्सप्रेस करा होची फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर तो ये टोटल टा मिसे देले एटा कोन हे जिवो गोटे डॉक्यूमेंट हे जिवो बुझियला यस और नो फोटोग्राफ केमती डॉक्यूमेंट हबो आउ बाहागर बाहागर ହେଇଛି ଦେଖ ମୋ ସାଇଡରେ ଯେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେ ମୋର ବର ମୁଁ ତା ସହିତ ବାହା ହେଇଛି this will be the recording purpose of photograph ବୁଝିଗଲା କିଏ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଚୋରି କରୁଥିଲା ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ this is the recording କି ସେ ସେଠି ବସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ so photograph ଯଦି କିଛି recording purpose ଅଛି then ସେ ଜାଗାରେ that can be given as an evidence CCTV footage electronic form ରେ जो documents ଗୁଡା ରହିଲା so those are all evidence and can be given ଯଦି ସେଟା relevant fact under ରେ ଆସୁଛି ବୁଝିଗଲା document yes or no okay so now document doesn't mean only paper document can be anything jaha upare kichi express kara gala but ये जो बात्रा में हुए जो लेखंती हाँ वीडियो कैन बी डॉक्यूमेंट से जो कांथ बाड़े लेखंती थोड़ा सब डॉक्यूमेंट हबो नहीं ओके डॉक्यूमेंट टा सब बेले जनरल मीनिंग रे निया जाय टेप रिकॉर्डर एंड ऑल जोड़ा सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड सेटा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बोली कहवा जाय ई डॉक्यूमेंट बोली कहवा जाय मैटर अछि एक्सप्रेस हेछि कोठी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे रिकॉर्ड हेकी अछि बुझियला so next next write down evidence substance माने सुधाराणी किछि गोटे पदार्थ किछि गोटे जिनिस ऊपर जहा लिखा हेछि ओके मैप केमती डॉक्यूमेंट हबो गोटे मैप कौन करूची गोटे मैप शो करूची कि फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग कि ए रोड टा एठी जाईची ए रोड टा एठी बुलीची ए जगह को अंधारुआ हुआ जे ता आगु गले घाटिकी आसे ता आगु गले कलिंग नगर आसे ता आगु गले खंडगिरी आसे तो रिकॉर्ड हे गला ना ए सब जिंस प्लान केमती हबा हमर जो घरटा अछि तार फ्लोरिंग प्लान ए अछि सेकंड फ्लोर प्लान ए अछि थर्ड फ्लोर प्लान ए अछि तो जब क्वेश्चन आसला कि तुम्हें प्लान अनुसार काम करिन आमे प्लान रो जो डॉक्यूमेंट अछि सेटा को एविडेंस प्लान माने आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि प्लानिंग फॉर अ हॉलिडे इट्स अ प्लान एज टू बिल्डिंग फ्लोर प्लान एज टू एनीथिंग जेटा एग्जीक्यूटेड हबार अछि ओके प्लान एज टू एनी पिकनिक नुहे मु बुझी गेली से ही भाबुतले आपण सो नेक्स्ट कम टू एविडेंस सो एविडेंस जो जिनसडा अछि एविडेंस रे डेफिनेशन रे कहिनी कि मीनिंग ऑफ एविडेंस कोन इंक्लूड करी छि कोन एविडेंस हबो सो एठी एविडेंस रो मीनिंग बुझेनी एठी एविडेंस कोन कोन बोली बुझे छि एबे एविडेंस दीटा जिंस थाए गोटे हला ओरल एविडेंस गोटे हला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एबे एविडेंस को फॉर्मेट रे दिए जे दीटा फॉर्मेट रे ओरली कहि परिबो या फिर डॉक्यूमेंटरी हे परिबो तो ए जो एविडेंस रो डेफिनेशन अछि दिस इंक्लूड्स कि कोन एविडेंस रे इंक्लूड होउछि this means an ମାନେ ଏଠି କୁହା ହଉଛି କି evidence means and includes କଣ oral evidence or documentary evidence so first write down heading ଦିଅନ୍ତୁ evidence and ବହୁତ important ଏଟା long question ଆସେ heading ଦିଅନ୍ତୁ evidence write down first लिखନ୍ତୁ oral evidence evidence ର जो branch ଅଛି सेठरे फर्स्ट दीटा सेटा को ब्रांच हमें परे करिया अब एमती खाली लिख दियंतु प्लेन रे एविडेंस तळे लिखंतु ओरल एविडेंस oral evidence रे हाइपेन दे के लिखंतु all statements which the court permits or requires all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry
in relation to matters of fact under inquiry. So it कौन कहला all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Underline karantu. Just a minute. Hello. Okay. So first write down. Concretely, all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. So underline karantu statement re. Underline karantu statement re. Underline karantu permits or requires re. Then underline karantu by witnesses re. Then underline karantu relation to matters. Then underline karantu fact under inquiry. So a question asila oral evidence kon. Oral evidence are the statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses as to what as to the matter of fact under inquiry. So जेबे भी गोटे लोक जाइकी कोर्ट रे गोटे एविडेंस दौची आ कोर्ट ताको परमिट करूची एविडेंस दबा पाई कि तार जो स्टेटमेंट है से कोर्ट रे दौची दैट इज कॉल्ड एज ओरल एविडेंस. तो ओरल एविडेंस कौन एनी पर्सन who is going to the court and who is giving a statement as to the matter of fact under inquiry तार जो statement court record करे that is called as oral evidence. Next come to documentary evidence. Second point to write down documentary evidence. Documentary evidence रे हाइपेन देके लिखंतु all documents bracket रे लिखंतु including electronics record produced for the inspection of the court. Produced for the inspection of the court. All documents including electronics record produced for the inspection of the court. So underline it karantu produced for the inspection of the court. This is a simple माने कहया गले सबुठु सिंपल डेफिनेशन गोटे इंडियन एविडेंस एक्ट रे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कोन जो डॉक्यूमेंट को कोर्ट रे इंस्पेक्शन पई दिया जे सेगुडा हला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस इंक्लूड करे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आल्सो. सो एविडेंस रे एठी मीनिंग कहिलानी एविडेंस रो कोन एठी कहला एविडेंस रो काइंड्स कोन एविडेंस दीटा काइंड रे डिवाइड हुए गोटा असला ओरल डॉक्यूमेंट सॉरी गोटा असला ओरल एविडेंस गोटा असला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. ओरल एविडेंस माने जो लोकटा जाइकी विटनेस हुए एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सेटा को ओरल एविडेंस को हजे. देन जो डॉक्यूमेंट गोटे मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी रे इंस्पेक्शन पाई कि दिया जाए सेटा को डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कुहा जाए. एतिकी बुझी हला ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंटरी एविडेंस विटनेस जहाँ कुहे सेटा ओरल एविडेंस जोड़ा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिकी प्रूफ करा जाए दैट्स डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. एंड एविडेंस टा दीटा टाइप रो. एबे गोटे ब्रांच बनांतु मझरे लिखंतु एविडेंस हेडिंग दियंतु एविडेंस तार दीटा तीर माने दीटा ब्रांच बाहर करंतु दीटा हेड करंतु ताको गोटे हेड रे लिखंतु ओरल एविडेंस आ गोटे हेड रे लिखंतु डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. गोटे हेड रे लिखंतु ओरल एविडेंस गोटे हेड रे लिखंतु डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. एबे ओरल एविडेंस जोठी लिखिचंती तार दीटा ब्रांच बाहर करंतु गोटे रे लिखंतु डायरेक्ट एविडेंस गोटे रे लिखंतु डायरेक्ट एविडेंस आ गोटे रे लिखंतु इनडायरेक्ट एविडेंस. गोटे रे लिखंतु डायरेक्ट एविडेंस
आउ गोटे लिखंतु इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस जोड़ा अछि सेठी गोटे ब्रैकेट रे लिखंतु हियरसे एविडेंस। जोठी इनडायरेक्ट एविडेंस लिखचंती सेठी ब्रैकेट रे लिखंतु हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस। तो आ फर्स्ट कहूची फर्स्ट आसिला हेडिंग दियंतु हेडिंग रे लिखंतु एविडेंस। एविडेंस रो दीटा ब्रांच बाहर करंतु गोटे ब्रांच रे लिखंतु ओरल एविडेंस आ गोटे ब्रांच रे लिखंतु डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। ओरल ब्रांच जोटारे बाहर करछंती ओरल एविडेंस जोथरे लिखछंती सेथरे दीटा ब्रांच बाहर करंतु दीटा रे गोटे रे लिखंतु डायरेक्ट एविडेंस आ गोटे रे लिखंतु इनडायरेक्ट एविडेंस। जोठी इनडायरेक्ट एविडेंस लिखिछंती सेठी ब्रैकेट रे लिखंतु हियरसे एविडेंस। ओके एबे आ गोटे कोडा रहला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रो भी दीटा ब्रांच बाहर करंतु गोटे रे लिखंतु प्राइमरी एविडेंस आ गोटे रे लिखंतु सेकेंडरी एविडेंस। गोटे रे लिखंतु प्राइमरी एविडेंस आ गोटे रे लिखंतु सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर। सो एविडेंस रो एगुडा हला सबु काइंड्स एंड आ गोटे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रा ओरल एविडेंस अंडर रे आसुचे बट दिस इज नॉट ऑथेंटिकली ओरल एविडेंस फिर भी लिखि दियंतु जोडा इनडायरेक्ट एविडेंस लिखचंती ताकू हियर्स एविडेंस लिखंतु आ सेकंड रे लिखंतु सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सेकंड रे लिखंतु सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस रो दीटा ब्रांच बाहर करंतु गोटे रे हियर्स लिखंतु गोटे सर्कमस्टेंशियल लिखंतु। तो फर्स्ट असला एविडेंस यस फर्स्ट असला एविडेंस एविडेंस रे असला दीटा गोटे असला ओरल एविडेंस गोटे असला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। ओरल एविडेंस रे असला दीटा गोटे असला डायरेक्ट एविडेंस गोटे असला इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस रे असला दीटा गोटे असला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गोटे असला हियर्स एविडेंस। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस असला दीटा गोटे असला प्राइमरी एविडेंस गोटे असला सेकेंडरी एविडेंस। सो वी आर गोइंग टू रीड दीज आर ऑल कौन कौन एंड ए सब जिंस कौन एविडेंस रे यूज करा जाए। सो एबे एविडेंस रो काइंड्स बुझियला। एविडेंस रो प्राइमरीली दीटा काइंड गोटे असला ओरल गोटे असला डॉक्यूमेंटरी। एबे ओरल को दीटा रे डिवाइड करा गला गोटे असला डायरेक्ट गोटे असला इनडायरेक्ट। एबे इनडायरेक्ट को दीटा रे डिवाइड करा गला गोटे असला हियर्स गोटे असला सर्कमस्टेंसेस। एबे डॉक्यूमेंटरी को दीटा रे डिवाइड करा गला गोटे असला प्राइमरी गोटे असला सेकेंडरी। सो स्लोली हमें पढ़ी पढ़ी जिबे एबे सब कोन। फर्स्ट लिखंतु एविडेंस रो लिटरल मीनिंग। द word evidence is derived the word evidence is derived from the Latin expression evidence evidera which signifies state of being evident. State of being evident. State of being evident. So evidence derive kuruchi the term evidence evidena which means state of being evident. Next write down. According to Bentham, evidence is defined as any matter of fact. Evidence is defined as any matter of fact design of which is to produce
in the mind, in the mind, a persuasion, a persuasion, affirmative, affirmative, or disaffirmative, or disaffirmative of the existence of some other matter of fact, of the existence of some other matter of fact. So if you define this definition, what you get? First is कौन? According to Bentham evidence कौन? ये define कला गोटे fact को जो fact टा एमिति रूपरे design ही थाए जहार काम हैला कि गोटे matter जोटा issue रे अच्छी ता विषय रे से किसी जिंस existence विषय रे बुझोची या फिर तार non existence विषय रे बुझोची of the existence of some other matter of fact, existence of some other matter of fact. तो बेंथम को अनुसार एविडेंस टा गोटे एमितिया फैक्ट जहा को दबा द्वारा तुम्हें आउ गोटे फैक्ट विषय जानिया पाई कि पाउच मर्डर हेची ना नहीं डाइंग डिक्लेरेशन दबा द्वारा तुम्हें जानिया को पाउच कि मर्डर हेची बोली. सो एविडेंस गोटे एमितिया फैक्ट जोड़ा को देकी तुम्हें आउ गोटे फैक्ट विषय जानिया पाई कि पाउच अकॉर्डिंग टू बेंथम. नेक्स्ट राइट डाउन स्टीफेन. स्टीफेन स्टीफेन के हिसाब रे it is words uttered by witnesses, it is words uttered by witnesses, uttered by witnesses. Second, it is facts which is relevant for inquiry, it is facts which is it is fact which is relevant for inquiry. ଗୋଟେ ଏମିତିଆ fact ଯୋଉଟା relevant inquiry ପାଇଁକି. So these are all the definition of Stephen. ये सब जिनस को बेसी जीवानी बेंथम और स्टीफेन माने सिंपली एमाने कहया को चाहले कि जो जिनस गुडा तुमे गोटे इंक्वायरी को हेल्प कराओ जो जिनस गुडा कहि कि तुमे गोटे इंक्वायरी रो कंक्लूजन रे पहुंचो सेटा को एविडेंस बोली कुहा जाय. तो लिटरल मीनिंग ऑफ एविडेंस एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट रे कहनी. इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 डिफाइन करूनी इंडियन एविडेंस एक्ट एटा कहूची काइंड्स ऑफ एविडेंस. काइंड्स ऑफ एविडेंस रे दीटा आछी गोटा असला ओरल एविडेंस जोटा विटनेसेस माने जाय कि कोर्ट रे कहंती आ गोटे असला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस जोटा कोर्ट रे प्रोड्यूस करा जाय एविडेंस रे दिया जाय. एबे हमें काइंड्स पढिबा ओरल एविडेंस रो हेडिंग दियंतु ओरल एविडेंस. अब एविडेंस टा आस्थिला एविडेंस एविडेरा रो व्हिच मींस स्टेट ऑफ बीइंग प्रूफ. बेंथम और स्टीफेन कहिथिले कि जो जिंस को गोटे जिंस को प्रूफ करिया पई दिया जाय गोटे फैक्ट जोटा दिया जाय आ गोटे फैक्ट को प्रूफ करिया पई कि सेडा को हम एविडेंस बोली कहू. सेडा मैटर ऑफ फैक्ट माने सेडा गोटे विटनेसेस भी कहि परिबो सेडा डॉक्यूमेंटरी भी हे परिबो सेडा को अनुसार भी हेई परिबो. सो एबे राइट डाउन ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस रे फर्स्ट लिखंतु डायरेक्ट एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस बहुत सिंपल जिंस गोटे ए बी को गोटे मर्डर ए बी को मर्डर कला छुरी भूसी की मारुची एबे सिटी सी छिडा हेची जे देखुची स्टैबिंग करियार ट्रांजैक्शन टा एबे सी जें कि डी को कहला कि जानि छु ए बी को मारी देला. तबे डायरेक्ट एविडेंस कोटा इनडायरेक्ट एविडेंस कोटा माने किए कहले डायरेक्ट हबो किए कहले इनडायरेक्ट हबो. देखला सी जें कि कहले डी को तो किए देखला सी देखला तो एबे से जो जिंसडा कहूची दैट इज हिज डायरेक्ट एविडेंस. एबे डी जहा कहबो दैट विल बी हिज इनडायरेक्ट एविडेंस. तो जेबे गोटे फैक्ट्स नि इश्यू रे गोटे क्वेश्चन थाए जीए से जिंसडा को डायरेक्टली परसीव करी थाए मु देखली चोरी हबा मु देखली मर्डर हबा मु देखली किछि भी हबा रॉबरी हबा डकैती हबा सो आई विल बी द डायरेक्ट ओरल विटनेस. तो जहा मु परसीव करिछि ताहा मु जाइंकी कोर्ट रे कहिबी सो मु हेबी डायरेक्ट एविडेंस. So write down direct evidence is the testimony of witnesses. Direct evidence is the testimony of witnesses as to any matter of fact, as to any matter of fact, as to any matter of fact
which the witnesses have themselves perceived, which the witnesses have themselves perceived, which the witnesses have themselves perceived. Example, A hyphen B hyphen murdering or stabbing, A hyphen B stabbing, C hyphen perceived that transaction, C hyphen perceived that transaction, C hyphen perceived that transaction. Then testimony of C hyphen direct evidence. Testimony of C hyphen direct evidence. तो ये कौन लिखे रहा example रे A B को stab करूची. So A is the human being. A hyphen B stabbing. तो A B को stab करूची. C is the person जिसे perceive करूची से transaction को. Then C रो testimony is his direct evidence. तो C को कौन कुहा जीवा direct evidence बोली कुहा जीवा because से जहाँ perceive करेला से कोर्ट रे जाएंगे कहेला. So C will be a direct evidence. तो डायरेक्ट एविडेंस माने कौन जब गोटे फैक्ट क्वेश्चन रे अछि जो लोकटा ताको परसीव करिछि डायरेक्टली एंड जाइंकी कोर्ट रे कहूछि तार एविडेंस को डायरेक्ट एविडेंस बोली कुहा जाय बुझियला. सो डायरेक्ट एविडेंस रो वैल्यू बेसी थाए ना कम थाए as compared to indirect evidence. So do you think indirect evidence रो किछि वैल्यू थाए? Of course थाए. पढ़े हम एटा. Write down indirect heading दियंतु indirect. फर्स्ट लिखंतु hearsay. फर्स्ट लिखंतु hearsay. hearsay पूर्वरु गोटे ओडिया जिंस अछि तिनी तुंडरे छेली कुकुर. जदि कॉन्सेप्ट आछि ट्रांसलेशन रो व्हाट यू विल बी डूइंग ट्रांसलेशन कोन करिवे तिनी तुंडरे छेली कुकुर को हाउ यू ट्रांसलेट दिस तिनी तुंडरे छेली कुकुर hearsay लिखिवे. So तिनी तुंडरे छेली कुकुर is hearsay evidence. So which means कि जेबे गोटे कथाटा 1 2 3 4 जाउची देन सेठी छेली कोन हे जिवो कुकुर हे जिवो डायनासोर हे जिवो इट्स तिनी तुंडरे छेली कुकुर तिनी तुंडरे छेली कुकुर. Okay, God is equal to dog. In between तीनटा human being थिबे ता मझिरे राई को पहाड़ बनाना is the same thing. Okay, so एबे मु मनीषा को कहिली कि मनीषा जानिचु मो बाटरे गला बेले देखिली कि से लोकड़ा ताको छुरी भुसु ताको गोडौथिला. एबे मनीषा जाइंकी कोन कहिबो प्रियांशा को तू जानचु सेठी ना से पूरा छुरी नुए तलवार गोटे बड़ रामपुरी नेकी से धरथिला बता पछरे. एबे प्रियांशा जाइंकी सस्मिता को कहिबो तू जानचु आज कोन हैला गोटे ड्रैकुला पेट जण कर थिला से कोठो आंटी गोटे डोमेस्टिक तार ड्रैकुला गोटे तार हेची से ड्रैकुला गोटे नियारे समस्त को जळे दोचे. सो दिस इज ऑल तिनी तुंडरे छेली कुकुर जेटा कोरोना टाइम रे होची. ओके सो सेही जगह रे कोन हबो सेही जगह रे whether this will be an evidence जदि मु कहूची कि मु देखिली स्टैप करियर एक बी को एबे से मु बी को कहली बी सी को कहला सी डी को कहला एबे डी जाइंके कोर्ट रे सेटा कहला एबे कोर्ट रे डी रो जो स्टेटमेंट आ whether this is admissible. No, it won't. Why? Because D first of all कोर्ट जतले पचरिबो तुमे केमति जानिलो D कहबो मु C ठु जानली C कहबो मु B ठु जानली B कहबो मु A ठु जानली ओरिजिनली किए जानि छि केबे धरा पडिबो से ओटा क्वेश्चन आसला जदि मु गोटे जिंस निजे परसीव करिनी मो ऊपर किछि रिस्पांसिबिलिटी आसला मु तो आ जण को ऊपर कहि देबे मु कहिबे कि से से आउ जण को कहूतिला से आउ जण को कहूतिला मु ताठु सुनतिले आपण ताको पचरन तो कोनोसे गोटे ओरिजिनलिटी तार रहइबो नाही. तो मन रखंतु जनरल रूल. तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रूल हैला हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस. हियरसे एविडेंस रे दिया जाई परिबो नाही बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जोगुडा हमें पढिबा. बट एबे फर्स्ट लिखंतु हियरसे एविडेंस रो माने कोन. हियरसे एविडेंस रे लिखंतु heard and said heard and said
बहुत जन लाइफ रे एक्सपीरियंस करते हुए हर्ड एंड सेड मु तो कहा कुछ कह ही छाड़ दी तापर मैं इफ यू से समथिंग टू माने समवन समथिंग से ताको गोटे आउ गोटे वर्जन देकी कहि दे आउ बेसी बेसी गोटे सब फ्रेंड्स मानक गहण रे थाए तुमे गोटे कथा कहथियो से ताको बुली के आउ किछ कहि देथियो से ताको बुली के आउ किछ कहि देथियो से बे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स मोर गोटे भी संग नाही मु बिल्कुल कथा ही हुएनी कहा से तो एक्सेप्ट माय स्टूडेंट्स सो डायरेक्ट एविडेंस और हियर्स एविडेंस to write down heard and said heard and said write down it is also sometimes called a second hand second hand or an unoriginal evidence. It is also called a second hand or an unoriginal evidence hearsay evidence is the evidence hearsay evidence is the evidence learned by witnesses learned by witnesses not through the medium of their own senses not through the medium of their own senses but through the medium of third persons but through the medium of third persons. Hearsay evidence is the evidence learned by witnesses not through the medium of their own senses, not through the medium of their own senses, but through the medium of third persons. Okay, got it. सो ये कौन कहला तुम्हें निज सेंसेस द्वारा यहाँ देखुन आउ जड़े ता सेंसेस रु जहाँ देखी से तुम आगे जहाँ कहूँ तुम्हें से जिनसटा को शुणुच आउ कोर्ट रे कहूच बुझीगला कौन मु कहली सो हियर्स एविडेंस कौन हर्ड एंड सेड जागृति देखला मर्डर ही जागृति आसिक मते कहला मैम जानचंती एठी मु जाउथली आ देखली से लोकटा तो छुरी भुसला बहुत मार देला मु भाबुथली ताको मेडिकल नेबी बट पुलिस चक्कर रे के फसिबो कहि कि मु नेलिनी मु पळे आसली जेंति लोक मान सब करचंती आहुरी रिपीट करी जागृति ओके राइट डाउन आउ थे रिपीट करछि मु कोन डाकुथली मु भूली गली hearsay evidence is the evidence learned by witnesses not through the medium of their own senses but through the medium of third persons तेटी जागृति आसिक मते कोन कहले कि मैडम एमती मर्डर हेची तो मु जाइंकी ट्विंकल को कोन कहली से सेठी जणक ना नेठला मु कहली मोर जहा ऊपर रिवेंज नंबर थिला मु तांको ना भी ऐड कर देली मु कहली जानछ से ए बी सी डी सब मिसी को बाडे दोथिले तेबे मु कोर्ट रे जाइंकी जो जिंसटा कहबे वेदर तार किछि वैल्यू अछि नो बिकॉज एक तो मु मिछ कहली दुई रे मु काहाटो इन्फॉर्मेशन पाइली सेटा कोर्ट केमति जानिबो मोर डर कोर्ट पाई कि रहबेनी काहेना मु फॉल्स एविडेंस दे देबी और मु आउ जनक नारे सेटा कहि देबी तो ए सब जिंस गुडा रे गुडे हियर्स एविडेंस को एविडेंस रूप रे निया जाए नाही सो ओरल एविडेंस जदि कोर्ट को जाए एटा सब बेले डायरेक्ट एविडेंस हुए जे निजे सेटा को परसीव करिछि जे निजे सेटा को परसीव करि न थाए आ गोटे थर्ड पार्टी टू सेटा सुनी थाए तार एविडेंस को कोर्ट रिजेक्ट करी दिए सो राइट डाउन general rule hyphen hearsay evidence is no evidence hearsay evidence is no evidence जदि क्वेश्चन आसिला hearsay evidence हबो ना नहीं आंसर विल बी no general rule कहला हबो नाही ब्रैकेट रे लिखंतु को सेक्शन कहला सेक्शन 60 सेक्शन 60 oral evidence विषय रे कहूची section 60 कहूची oral evidence should always be direct bracket रे you can write down this section 60 लिखिकी bracket रे आपण लिख परिबे oral evidence should always be direct oral evidence should always be direct oral evidence सब बेले direct हबा दरकार सो ता माने कहला indirect evidence हबा नाही तो according to section 60 general rule हला hearsay evidence is no evidence so hearsay evidence हबा yes or no
generally haba nahi. Sethi ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତୁ, there are some exceptions, there are some exceptions जोड़ा आमे परे पढ़िबा, बिकॉज एबे आपण माने सेडा पढ़ले किछि बुझ परिबेनी, तो से सब जिंस पढ़ला परे आमे पढ़िया कि केबे केबे एडा को एविडेंस रे दिया जो। एबे पई एतिके मन रखंतु कि हियर से एविडेंस एविडेंस हुए नाही, बट किछिटा एक्सेप्शन तारो अछि। तो डायरेक्ट ओरल एविडेंस बुझियला कोन, जेबे गोटे विटनेस जाय कि कोर्ट रे फैक्ट जोडा अंडर इंक्वायरी थाए ता विषय रे किछि कुहे, सेडा को कुहा जाय ओरल एविडेंस। एबे नेक्स्ट आसिला कोन, जहाँ से निजे परसीव करि थाए डायरेक्टली तार एविडेंस को कुहा जाय डायरेक्ट एविडेंस। जहाँ से निजे परसीव करि न थाए आउ जाय कि आउ जण को कहता है आउ जण जाय कि होय, सेडा को कुहा जाय इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस रे आसे हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस ता नो एविडेंस अकॉर्डिंग टू जनरल रूल। सेक्शन 60 रे सेडा कहिला कि सब बेले एविडेंस को ओरली दिया जिबा कथा, सेति में हियरसे एविडेंस केबे एविडेंस हबो नाही, जनरली नो, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जोडा हमें परे पढ़िया। बट ता भितर गोटे मु कहि दउची फॉर योर एटलीस्ट आइडिया आसीजिबो कोन। एबे जदि मु लोपामुद्रा को या फिर लिकन, हाँ मो लिकन को कहली गोटे स्टेटमेंट देली कि मु से लोगों को मर्डर करिचे। एबे लिकन को मु जोडे कहली वेदर दैट्स एन एडमिशन कन्फेशन कोन, सेडा मु मर्डर करिचे बोली जो लिकन को कहली सेडा कोन, एडमिशन कन्फेशन कोन, दैट्स कन्फेशन, राइट, कन्फेशन हला। तो एबे लिकन जें के कोर्ट रे कहला जो जिंसडा सेडा हर्ड एंड से भीतर आसला ना नै, yes, and 5 to नहीं कि 55 रे कौन कहला एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन बी गिवन एज एन एविडेंस। तो एडा हियर से फॉर्मेट रे रहिले बी सेडा को एविडेंस रे दिया जिवो। तो जागृति द थिंग इज कि एबे मु जदी आपन को कहली कि मु मर्डर करिचे, तो मु आपन को कन्फेशन देली, तो कन्फेशन देला परे आपण सेडा कोर्ट रे जाय कि कहले कि मु सुचंदना मानि थिले कि से मर्डर करिसेंती बोली, सो सेडा कोर्ट एडमिट करिवो। बट सेडा तो हियर से फॉर्म रे अछि, मोठो आपण सुनी कि कहले, बट काई सेडा एडमिसिबल हैला बिकॉज़ दिस इज कमिंग अंडर द एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस। सो हियर से एविडेंस रे एक्सेप्शन रे कन्फेशन आसे, एडमिशन आसे, डाइंग डिक्लेरेशन आसे, ओके तेगुडा सबु कन्फेशन माने मर्डर मु जहा करिछि मु से विषय रे मानुछि, ओके। तो कन्फेशन मजिस्ट्रेट आगे हुए 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड व्हिच इज कॉल्ड एज जुडिशियल कन्फेशन, बट कन्फेशन व्हिच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड इन फ्रंट ऑफ एनीबडी एल्स एक्सेप्ट अ पुलिस ऑफिसर, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ओके। पढ़े हमें एवढा सब। तापरे नेक्स्ट कम टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आउ कन्फेशन माने सुधाराणी जो जिनसडा क्राइम टा मु करिछि से क्राइम टा मु मानिछि, तो दैट्स कॉल्ड एज कन्फेशन। मु मर्डर करछि बोली आपन आगे मानुछि कि मु जानिचंती मु गली सस्मिता को मु मारिबिनी, मु गली ए सेठी थिला, ए बहुत बदमाश होउथला, ए बहुत मते प्रॉब्लम करे दैछि, तो मु भाबली ए को मारि देले प्रॉब्लम सॉल्व होछि, मु ए को मारि देली। मु आपन कहिछि आपन काहा को कहबे नाही, सो अपन जाके कोर्ट रे कहि देले कि आगे से मानिछि मु आगे से मर्डर करछि बोली। सो अपन कोन हर्ड एंड से कले ना, मु परसीव कली मु निजे मर्डरर, मु जाके कहली, ओके। हाँ तेगुडा सब एक्सेप्शन अंडर आसीबो, बट सेगुडा हमें नहीं सेडा हमें 60 रे पढ़िया, सेक्शन 60 रे पढ़िया, ओके। Admission माने as to any fact, voluntary acknowledgement of anything, confession as to guilt, confession as to crime. Confession is always relating to an accused person, admission can be anything. Admission हैला कि मु किछि जनकर एग्जाम खाता चेक करी नाही, दिस इज एडमिशन। मु तुमठू पैसा आनिछि, दिस इज एडमिशन। मु घरे गैस सिलेंडर चोरी करिके रखिछि, दिस इज एडमिशन। मु चोरी करी रखछि कन्फेशन हबो बिकॉज़ एडा क्रिमिनल केस हे जाउछि, तो निजे भूल मानिबा एज टू क्राइम। मु मर्डर करछि इज कन्फेशन, मु रॉबरी करछि इज कन्फेशन, मु चोरी करछि इज कन्फेशन। इंडियन पेनल कोड रो कोनोसी भी ऑफेंस को मु मानुछि कुहाबो मु कन्फेस कली। एडमिशन कैन बी एनीथिंग जोडा मते हार्म करिवो बट नॉट नेसेसरीली क्राइम, ओके। सो एनी स्टेटमेंट जेमति जागृतिठी मु पैसा आनिछि, जागृतिठू मु 5 कोटी टंका आनिछि, एबे जागृतिठू 5 कोटी टंका आनिछि इज अ क्राइम। So whether it will be a confession or an admission, it's an admission, okay. जागृति को मु मर्डर कर देली, whether it's a confession or admission। ममता को मुझे कहले जानछु जागृति को मार देली, so सब बड़े मते रिपीट करिया को कहतला, this is the reason, so this is the confession। आसे मते रिपीट करिया को कहतला, this will be coming under what?
my motive. Okay. Next, circumstantial evidence. Jagrati or Pachariwani. Jagrati, it was a joke. Circumstantial evidence to write down, you can repeat it 100 times. And it is almost a manrakhantu for them also. जो मैंने भी पढ़ू चंती, if किसी बुझु नांती या फिर किसी इंसान लेखिया रे problem होची, please do ask me. मु अच्छी ही पढ़े पाइन, so I will be never get irritated. Yes, अग्नि कन्या. ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା କଣ ହେଲା ଜାଗୃତି vaccine ନେଇକି ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି so write down circumstantial evidence ବୁଝିଗଲା here's evidence କଣ okay so evidence ଦିଟା type ର ଗୋଟେ ଆସିଲା direct evidence ଗୋଟେ ଆସିଲା oral evidence ଗୋଟେ ଆସିଲା documentary evidence oral evidence ଆମେ ପଢୁଛେ direct ହେଲା ଯେ perceive करे indirect ହେଲା ଆ ଦ୍ୱାରା କହିକି heard and say then ଆସିଲା circumstantial evidence the most important portion of evidence ଆଉ ଏଇଟା long question ବି ଆସେ so circumstantial evidence ର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ first ମୁଁ ପୁରା concept ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଗ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ କାଲଠୁ board connect କରିବି actually ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ବି କି କେଟା ମୋର ମନେ ପଡନି ସେଇଟା connect କରିବା ପାଇଁ କି ତ ହଁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଖାଲି ପେପର ଯୋଉଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କେମିତି ବନେଇବେ ଆପଣ କହିଲେ circle वाला arrow बनाନ୍ତୁ circle वाला arrow ବନେଇ ପାରିବେ let me see ଏଠି board ଅଛି ନା ନାହିଁ full screen layout whiteboard अच्छी just a minute let me see होची ना नहीं waiting for ये तो आउ किछि ହେଇଗଲା turn link sharing on ମୁଁ ଆଉ କିଛି share କରିଦେବି just give me 1 minute oh I'm really sorry मते बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी आसुनी दुखित आपे व्हाइट बोर्ड रे मु शेयर मु काली को कनेक्ट कर देना आई हैव अ वी आई के कौन तो कहंती मु शेयर स्क्रीन हां होनी ऐश्वर्या बहुत टाइम लागो से बिसरे आपण गोटे काम करन मु जहा कहूची से करन खातार जो खाली पेज अछि एरो मार्क बनांतु सर्कल रे एरो मार्क बनांतु ओके सो फर्स्ट एरो मार्क बनांतु एरो मार्क रे फर्स्ट एरो मार्क रे जस्ट मिनट आई एम कमिंग गुड मिनट give me 1 minute एटा कनेक्ट कर दिली हे जाऊ केबे ना केबे तो कनेक्ट करिया अछि give me 1 minute हे जाऊ नाले अजथा कंफ्यूज हे जाऊ अपन मन मजली शेयर हेले कहिबे ता पूर्वरु खाली सुनंतु मु जहा कहूची सो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक्चुअली कोन गोटे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विषय रे डिफरेंट विटनेसेस माने टेस्टिमनी दियंती जो टेस्टिमनी गुडा मिसी गले गोटे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हे जाय जोटी इन्फरेंस ड्रॉ हे जाय कि दिस इज द थिंग ए लोकडा एया करिछि बोली जेमते कि क्वेश्चन आसिला ए बी को मारिछि ना नाही एबे जदी ए बी को मारिनी एंड ହେଲା देखि पारछन ना देख पारनांती visible Yes, ma'am. okay so तो फर्स्ट एटी कौन कहला कि जेबे गोटे क्वेश्चन आसला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोन तो जो भी है
गोटे मिनिट फालतू टाइम वेस्ट हो एक्चुअली लीव इट मु काली इटा को भल से करके कर देबे अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो कुछ हाँ तो जेबे क्वेश्चन आसला आज टू सर्कमस्टांसेस तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आसला फर्स्ट आसला ए बी को मारिची बोली क्वेश्चन आसला बट ए बी को मारिची बोली कोठी भी प्रूफ हेई नाही माने डायरेक्ट एविडेंस किछि नाही बट ए को बी रो घर को जिबा को जणे देखछि ए बी रो घर बाहरियार जणे देखछि एबे ए बी रो घर बाहर की आसी की छुरी धोइबार जणे देखछि आ बहुत दिन तळे तार तार झगड़ा हेतिला बोली जणे जानिछि एंड बहुत दिन तले से कहितला जण को जदी दरकार पड़िबो मु ताको मारी देबी तो एबे हम पाखरे केतेटा विटनेसेस अछंती गणंतु केटा विटनेसेस ए बी को घर को जिबा पई कि PW1 ए बी रो घर आसिया पई कि PW1 माने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 देन घर बाहरिया रो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 छुरी धोइया देखिया रो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 कन्फेशन जहा को करूथिला प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 तेमती वेरियस काइंड्स ऑफ विटनेसेस अछंती एबे एबी जो विटनेसेस माने अछंती एमाने फैक्ट्स एंड इश्यू रो डायरेक्ट विटनेस हेबे फैक्ट्स एंड इश्यू रो रेलेवेंट फैक्टर डायरेक्ट विटनेस एमाने बट फैक्ट्स एंड इश्यू रो डायरेक्ट विटनेस हेबे किए भी डायरेक्टली देखिछि मर्डर हबारो नो बट एमाने कोन एमाने गोटे गोटे सर्कमस्टांसेस को डायरेक्टली परसीव करचंती आ जो सर्कमस्टांसेस बिसरे से माने विटनेस हेइ चंती PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 तो जेबे हमें एई पांचटा विटनेसेस मानन को कंबाइंड करि देले देन हमको कोन मिलिला गोटे कंप्लीट कंक्लूजन एज टू कि मर्डर किए करिछि ए करिछि ना करि नाही सो आमे जेबे एमानन को कंबाइंड कर देले व्हाट यू आर गेटिंग बियॉन्ड reasonable case I mean sorry beyond reasonable doubt we are getting the information or inference that कि ए ही मर्डर करिछि आ ए छडा आ केही मर्डर करि नथिबे तो ही इज द वन जे मर्डर करिछि बियॉन्ड रिजनेबल डाउट तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हला आ ए जो ए बी रो घर को जिबा ए बी रो घरु बाहरिया ए बी ए छुरी पोखरी रे धोइया एवडा सब कोन रेलेवेंट फैक्ट्स हबे ना हबनी so these are all relevant facts yes or no these are all relevant facts तो एठी different relevant fact बेसरे different witnesses माने कहउचंती जोडा कि गोटे complete chain form करची कि this person has committed the offense this person and no other person has committed the offense so एबे कोन आसला circumstantial evidence now tell me one thing relevant fact रे जेबे गोटे डायरेक्ट एविडेंस अछि सेबे रेलेवेंट फैक्ट प्ले को आसीबो जदि डायरेक्ट एविडेंस रो रिलायबल गोटे सिंगल विटनेस अछि जहा ऊपर रिलाय करा जिवो एंड से पूरा देखिछि इंसिडेंट एंड से जेंकी कोर्ट रे कहिला एंड तारो एविडेंस प्रूफ भी हे गला आउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दरकार की आउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दरकार नाही डायरेक्ट एविडेंस विल बी प्रूफ माने विल बी इनफ तो एबे जो डायरेक्ट एविडेंस रा अछि एडा को कोन गोटे रेलेवेंट फैक्ट बोली कुआ जाय एडा को गोटे एविडेंस कुआ जाय but it a relevant fact hobani this is a relevant fact but this is not coming under legal relevance 5 to 55 5 bhitar aswa ha so this is a relevant fact because this is coming under section 5 right so ebe gote question asla direct evidence achi gote jinsa re to mu au b au c पांच जण छिडा हेचु पांच जण देखलु मर्डर हबार त आमे सब हेलु मु पूरा फर्स्ट रू कहूची पांच जण छिडा हेचु आ पांच जण देखलु मर्डर हबार त आमे सब कोन डायरेक्ट एविडेंस और नॉट we are all eyewitnesses ei case ପାଇଁ circumstantial evidence दरकार आमे सब authentic witness बोली प्रूव हे गेलु क्वालिटी भलो बोली प्रूव हे गेला एबे कोर्ट आम ऊपर रिलाय करि गेला एबे circumstantial evidence दरकार दरकार नाही किंतु जदी गोटे केस रे डायरेक्ट विटनेस नाहंती किबा डायरेक्ट विटनेस ऊपर बिलीव करा जाय परिबो नाही देन कोर्ट कोन देखिबो अदर फैक्ट्स गुडा देखिबो अदर फैक्ट्स गुडा माने कोन रेलेवेंट फैक्ट देखिबो मोटिव थिला ना नाही कंडक्ट थिला ना नाही अपॉर्चुनिटी थिला ना नाही प्ली ऑफ एलिबी थिला कि कोन थिला कि ए सब जिंस गुडा देखिबो तो ए जो रेलेवेंट फैक्ट ऊपर एविडेंस किए देबे विटनेसेस देबे तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माने कोन
Circumstantial evidence are the testimony by witnesses as to different circumstances from which an inference is to be drawn as to the fact in issue. So circumstantial evidence कौन एटा हला testimony of different witnesses as to different circumstances जोटा together कौन करूची गोटे inference draw करूची as to the facts in issue. बुझीगला circumstantial evidence ना बुझीगलानी ता घर को जिबार जणे देखला ता घर बाहरियार जणे देखला छुरी धोयार जणे देखला देन ताकू कन्फेशन जणे देइथिला सो ये सब तक जिंस मिसिकी जो इन्फरेंस ड्रॉ होची कि ये ताकू मर्डर करिछि दैट्स द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैम गोटे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रे केस प्रूव होई परिबो मैम इफ डायरेक्ट एविडेंस नथिबो यस तो जेबे गोटे डायरेक्ट एविडेंस न थाए सेबे सर्कमस्टेंशियल रे गोटे केस प्रूव करा जाय एंड जनरली क्राइम गुडा एमतिया जगह रे हुए कि डायरेक्ट एविडेंस सेल्डम अवेलेबल देन सेही जगह रे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऊपर ही रिलाय करा जाय आमे जो रेलेवेंट फैक्ट पढिले 5 to 55 तो सेही सब फैक्ट गुडा किए प्रूव करे विटनेसेस प्रूव करंती तो जदी गोटे केस कोर्ट को गला आ सेही टाइप रो फैक्ट किछि अछि डिफरेंट विटनेसेस डिफरेंट फैक्ट्स विषय जो कहउचंती जोडा कंबाइंडली गोटे इन्फरेंस सजेस्ट करूची कि सेही लोकडा मर्डर करिछि दैट्स कॉल्ड एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एज आई सेड अगेन मु देखुची मर्डर हबा आई विल बी अ डायरेक्ट विटनेस मु देखुची से ता घरु बाहरी की जिबा मु देखुची से ता घरे पसिबा मु देखुची से घरे बाहरी जाईकी छुरी धोइबा मु देखुची से तार ब्लड स्टेन कपड़ा को लुचेबा तो ये सब जिंस रे कोन मु कोन डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस विषय रे देखली मु हे परे या फिर अन्य लोक हे परंती डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस विषय रे देखुची जो सर्कमस्टेंसेस गुडा मिसी गले इंडिकेशन कोन इंडिकेशन कि मर्डर हेजे बोली तो ए जो इंडिकेशन ता सेडा को एविडेंस रे दिया जे परिबो ना नहीं यस दिस इज कॉल्ड एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सो बुझियला एबे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रे को सर्कमस्टेंसेस विषय रे दिया जाय रेलेवेंट फैक्टर विषय रे दिया जाय जोटा 5 टू नेकी 55 पर्यंत अछि बुझियला ता माने एया कि गोटे केस रे जदी डायरेक्ट एविडेंस जे परसीव करिछि डायरेक्टली से हला डायरेक्ट एविडेंस जी डायरेक्टली से जिंस परसीव करेनी बट तार आख पाख रिलेवेंट फैक्ट परसीव करिछि आ सेही विषय कोर्ट को जाय कहूची आ 4-5टा 6-7टा 10टा 11टा 100टा जते भी सर्कमस्टेंसेस अछि से विषय जानी कि जना पडुची कि ए जिंसडा हेछि से जो एविडेंस ऊपर कोर्ट रिलाय कला दैट्स कॉल्ड एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बुझियला ना आउतरे बुझेबे तो एविडेंस दीटा प्रकार रे थाए गोडा आसला डायरेक्ट एविडेंस गोडा आसला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस हला डायरेक्टली कमिशन ता जाना पड़ी जाउची बाय द पर्सन जे ताकू परसीव करिचे मु सेडी छिडा हेछि मु देखली चोरी करिया मु जाय के कोर्ट रे कहली आई एम द डायरेक्ट एविडेंस बट मु नथिली किंतु चोर को जणे से लेन रे जिबार देखथिला चोर को जणे गोटे दुकान रे जाय कि जिंस बिक्री करियार देखथिला चोर को जणे ता गाड़ी चले की जाउथिबार देखथिला तो ये सब जिंस कोन डिपेंड करछि डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस विषय जानुछि जो सर्कमस्टेंसेस गुडे एका सहित मिसी की इन्फरेंस ड्रॉ करछि कि दिस पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस बहुत ही बेटर हितांदा जदी व्हाइट बोर्ड कनेक्ट हे परंतो okay so this is all about circumstantial evidence एबे लेखंतु circumstantial evidence गोटे डायग्राम कर देली you will be getting it easily फिर भी लेखंतु मु बुझेबे first write down circumstantial evidence रे circumstantial evidence is the testimony by witnesses as to the circumstances from which an inference is to be drawn as to fact in issue author lekhantu circumstantial evidence is the testimony by witnesses as to the circumstances from which an inference is to be drawn as to fact in issue
शेयर हैला देखाउची ना देखाउनी व्हाइट बोर्ड व्हाइट स्क्रीन yes so now see circumstantial evidence कौन एबे क्वेश्चन आसला ए बी को मर्डर करचे ओके तो जेबे से बी को मर्डर करथिला से ट्रांजैक्शन टा सी देखिला केमती देखिला परसीव कला आईज रे तो सी कौन हबो सी हबो डायरेक्ट विटनेस तो सी जेबे कोर्ट को जीवो एंड कोर्ट रे तार स्टेटमेंट टा दबो कि एया हेथिला बोली ए स्टेटमेंट को कौन कुहा जीवो डायरेक्ट एविडेंस कुहा जीवो एति की बुझियला ना बुझियला ने बुझियला कहला एबे नेक्स्ट आसिला एबे नेक्स्ट आसिला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सी ए बी को मर्डर कला बट से जो मर्डर ट्रांजैक्शन सेटा केही भी आई विटनेस नाहंत नो आई विटनेस बट एबे किए अछंती ए जेबे बी रो घर को जाइथिला ताकू देखिथिला P1 से जेबे बी रो घरु बाहरी थिला ताकू देखिथिला P2 ए जेबे जाइकी नाइफ को धोइथिला ताकू देखिथिला P3 ए जेबे तारो ब्लड स्टेन कपड़ा जाइकी वॉश करिथिला ताकू देखिथिला P4 ए P5 को कन्फेशन देथिला एज टू द मर्डर बी आगुरु डाइन डिक्लेरेशन होल तो डायरेक्ट हे जो फिर भी आउ गोटे किछि सर्कमस्टेंसेस रेडी अप्लाई कर दवा जे कन्फेशन देथिला तो मारियर हां ए आउ बी रो आगुरु बहुत सारा माने गंडगोल थिला तांगर बहुत सारा झमेला थिला बोली किए जानला P6 जानथिला तो एबे जो P1 P2 3 4 5 6 ए जो चेन टा पूरा अच्छी जदि एमाने सबुतक स्टेटमेंट जाइके कोर्ट रे दौचंती तो P1 गोटे कोर्ट रे जाइके स्टेटमेंट देला एज टू से देखितला P2 जाइके देला P3 जाइके देला P4 जाइके देला P5 जाइके देला P6 जाइके देला तो ए सब जिंस रु कोन जणा पड़ची ए सब जिंस रु गोटे इन्फरेंस ड्रॉ होची कि A is the person जीए B को मारिचे अब एटा केमती जणा पड़ले एटा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रु जणा पड़िला काइना ए जो घर को जिबा गोटे सर्कमस्टेंस घर बाहरिया गोटे सर्कमस्टेंसेस नाइफ धोइबा गोटे सर्कमस्टेंसेस कन्फेशन करिया गोटे सर्कमस्टेंसेस ताको रिवेंज थिला गोटे सर्कमस्टेंसेस सो दीज आर ऑल द सर्कमस्टेंसेस जोड़ा क्युमुलेटिवली गोटे चेन फॉर्म कला और से चेन रु कोन जणा पड़ला कि नो अदर पर्सन देन ए हैज कमिटेड द मर्डर एंड सेडा को हमें कोन कहबा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोली कहबा एबे बुझियला okay so this is called as circumstantial evidence different witnesses different fact bisare kahibe and ebi jo circumstantial evidence achi circumstantial evidence रे आमे को relevant fact bisare कहिया a b रो घरे पसिला this shows what conduct under section 8 ता घरु बाहरिया conduct under section 8 confession करिया that's under 17 तेमती जो relevant facts अच्छी जो relevant facts अच्छी ताकू जो witnesses माने testimony दियंती कोर्ट रे जाइंकी सेडा को circumstantial evidence कुहा जाए so circumstantial evidence कोना testimony of witnesses as to different circumstances cumulatively forms a chain as to inference कि किए से offense टा commit करिछि बोली so लिखले first कोना circumstantial evidence is testimony by witnesses as to the circumstances from which an inference is to be drawn as to the fact in issue next write down
Direct evidence directly establishes the guilt of the accused. Direct evidence directly establishes the guilt of the accused. And in cases where direct evidence is not available, in cases where direct evidence is not available, then circumstantial evidence can be resorted to. Then circumstantial evidence can be resorted to. Then next can be resorted to. RESO or TED resorted to. Next write down. Next ଲେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥାଉ first ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ circumstantial ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ତ ଏତିକି ବୁଝିହେଲା yes or no any doubt circumstantial ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ବୁଝିହେଲା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଥିଲା A B କୁ ମାରିଆ she is the direct witness ବାକି ଯୋଉମାନେ different circumstances ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା circumstantial evidence so answer me circumstantial evidence will be coming under documentary evidence or oral evidence बहुत difficult question थिला oral evidence रो केटा kinds अछि ସମସ୍ତଙ୍କ message ସରେ ଯେ wait କରୁଛି ଦିଟା kind ଅଛି oral evidence ର ଗୋଟେ ଆସିଲା direct ଗୋଟେ ଆସିଲା indirect hearsay evidence ଟା evidence ହବ yes or no generally whether hearsay evidence will be an evidence ଏବେ message ଗୁଡା ଯେମିତି ଆସୁଛି I need to wait for 15 minutes ହଁ okay fine କାଲି ଆମେ continue କରିବା circumstantial evidence ରୁ circumstantial evidence କାଲି board ମୁଁ continue ମାନେ ସେଟା connect କରିଦେବି so that easy ହବ VEIKK okay bye bye